Hello student, now the new chapter nomenclature and IUPAC system. Nomenclature and IUPAC, not IUPAC. Okay, now the full form of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. And how to write the IUPAC name of any compound. This is a simple trick. Now first write prefix, then word root, then suffix. Now prefix has two types. The first is 2 degree and 1 degree. Yeah, 2 degree means branches substituent first you count. And now suppose cyclic compound, bicyclic compound, yes, spiro compound is given, then first apply 1 degree. Okay. Now the second is word root. Word root means how many carbons are present in the structure. The number of carbon in main chain. Now what is the suffix? Suffix always in last. The suffix has again two types. Number 1 degree and 2 degree. The 1 degree means type of carbon-carbon bond. Suppose single bond, double bond or triple bond is there. Single bond means ane, double bond means ene and triple bond means ine. So now this type of carbon-carbon double bond is given. Now just write the alkane, alkene and alkyne. Now the 2 degree is what? Functional group. So now we are discussing about only for this and this. So now the first is branches substituent. If you write the IUPAC name, first you write this thing. Branches substituent plus number of carbon in main chain and plus type of carbon-carbon bond. Okay, just you write. Now word root. What is a word root? How many carbons is there? The 1 carbon means meth, 2 carbon is eth, 3 carbon is pro, 4 carbon is but, 5 carbon is pent, 6 carbon is hex, 7 carbon is hept, 8 carbon is oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec, 13 tridec. Suppose 20 carbon, the ecos. Suppose 30 carbon, 20 carbon is there, the ecos, 30 carbon is triacont and 40 carbon is suppose given, it means tetracont. Okay. Now what is the primary 1 degree suffix? Primary 1 degree suffix. Primary means 1 degree. So primary means there is a carbon-carbon bond in main chain. है ना? The type of carbon-carbon bond. Suppose single bond is there, it means suffix is ane. Double bond is there, it means suffix is ene. Suppose triple bond is given, it means suffix is ine. So you know very well, single bond is known as sigma bond. This is a symbol of sigma. Now suppose double bond is given, so 1 for sigma and 1 for pi. Now suppose triple bond is given, there is a 2 pi and 1 sigma. So pi bond is a weaker bond. Yeah. So there is a symbol of sigma and there is a symbol of pi. So देखो pi bond is a weaker bond and sigma bond is a stronger bond. So now suppose you have these three formula. So now suppose which is more weaker bond. So there is a 2 pi bond. And there is a 1 pi bond, there is no pi bond. It means 2 pi bond, more number of pi bond increases, it means bond length increases. So bond length increases, suppose bond length इतना है, इसको easily break कर सकते हो. अगर इसकी bond length इतनी होगी तो इसको break करना easy है. Tough है. तो pi bond, the bond length of pi bond is more than these two compound. And there is 1 pi bond, there is a 2 pi bond. The more number of pi bond, it means more bond length. Okay, clear? Now suppose what is the acidic nature? The acidic nature, which has more acidic nature, there is a 2 pi bond. So 2 pi bond means bond length increases. So H plus easily remove. Okay, यहाँ से acidic nature तो pi bond ज़्यादा होने के कारण तो ये H plus को easily release कर सकता है, बाहर निकाल सकता है. ये भी निकाल सकता है लेकिन इसमें maximum probability है क्योंकि यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये अपने में से हाइड्रोजन निकालना है, इसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा. तो इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी. तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें प्रेजेंट होगी तो इसके लिए है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो अगर हाइड्रोजन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी देनी पड़ेगी? सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी इसमें पाई बॉन्ड है जिसके कारण से इसको लेस एनर्जी में इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा सकता है. Clear all of you? Okay. Now the next. Now how to calculate primary 1 degree, secondary 2 degree, tertiary 3 degree and quaternary carbon atom. Suppose
दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो कैसे करना है, हाउ टू फाइंड। देखो इस पहले कहीं से भी काउंट करो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। देखो ये कार्बन, ये तो यू नो वेरी वेल द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। जस्ट राइट डाउन कॉर्नर कि नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ओके, तो देखो ये कार्बन अपने आप को कितने से सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ देयर इज अ वैलेंसी 4। इसका भी सेम देखो, 2 बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन 4। देयर इज अगेन 2 बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन 4। देयर इज अ 3 हाइड्रोजन एंड 1 बॉन्ड, मतलब 4। तो ये याद रखना कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1, तो ये होगा 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो इट मींस 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, अगेन 2, तो ये 2 डिग्री। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। सिंपल एग्जाम्पल है, क्लियर। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। सपोज यू हैव दिस एग्जाम्पल। पहले तो मैं कार्बन रख के शो करता हूं, एंड हाउ टू राइट हाइड्रोजन ऑल्सो। देखो मैंने ऐसे बनाया। अब इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, 3 हाइड्रोजन से। इसके पास 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, 2 हाइड्रोजन से। ये कार्बन देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ये कार्बन कितने से सेटिस्फाई हो रहा है, 3 से, तो इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1, और इसको 3। ये कार्बन 1 से, तो 3 हाइड्रोजन। ये भी सेम, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, सेम दिस। अब देखो इसमें काउंट करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1, तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 1, 2, 3 एंड 4 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री। ये कार्बन 1 से 1 डिग्री। ये कार्बन ओनली 1 से, तो ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन भी ओनली 1 से, तो ये भी 1 डिग्री। क्लियर? ओके, now suppose you have another example, CS3, CS2, CS2, CS3, and again CS2, CS2, CS3, then CS2, CS2, CH, CS3, CS3। कहीं से भी काउंट करो, इधर से चाहे इधर से। देखो यहां से काउंट करते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री। ये कार्बन देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया 4 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से है, तो 2 डिग्री। ये भी 2 कार्बन से, 2 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री। ये भी ओनली 1 से, तो 1 डिग्री। ये कार्बन भी 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से, एक इससे, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन देखो 1 और इससे 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ सपोज I am giving another example. Just write down CS3, CS3, just CH, CS3, just CH, CS3, this is your homework. Just find how many 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. Now the next question again. Now suppose there is a Cl. देखो कार्बन को सिर्फ कार्बन से ही काउंट करना है। अगर पूछे हाउ मेनी डिग्रीज देयर, तो दिस कार्बन ओनली अटैच विद 1 कार्बन। ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। ओके,
next. This is the 3 example for your practice 1, 2 and 3. Clear? Okay. Okay, done. Now the next topic is, what is the rule for IUPAC? Select longest carbon-carbon chain. Need not be straight. मतलब वो straight भी हो सकता है, कैसे भी हो, बस longest देखना है आपको. This is very important rule. Select longest carbon-carbon chain. मतलब क्या हुआ कि वो चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे जाए. If 2 or more longest carbon-carbon chain are there, that one with maximum number of branches. मतलब अगर मान लो दोनों तरफ से आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप वहां से काउंट करो जहां से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है. ओके, द नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांचेस गेट लोवेस्ट लोकेंड मतलब नंबर. तो ये मतलब आप वहां से काउंट करो जहां से नंबर ऑफ ब्रांचिंग तो हो ज्यादा, लेकिन उसका काउंटिंग करने पर, टोटल काउंटिंग करने पर लोवेस्ट लोकेंट में आए. इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी. तो देखो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट गिवन होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बताऊंगा मैं. तो देखो CH3 अगर गिवन है सब्स्टिट्यूएंट में तो मिथाइल, C2H5 गिवन इज इथाइल, C3H7 एन प्रोपाइल. अगर ऐसे दिया है यानी ये जो आगे सिंगल बॉन्ड है ये किसी कार्बन से अटैच्ड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इस बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई हो रही है. अगर मान लो CH3 CH CH3 ऐसे जुड़ा है किसी ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया है, तो इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल. Cl Br IF गिवन है, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो एंड F फ्लोरो. अब देखो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल्केन, यू नो सफिक्स इज इन. तो देखो सिंपल एग्जांपल. द फर्स्ट इज वेरी इजी. CH3 CH2 CH2 CH3. सिंपल कोई पूछे हाउ मेनी कार्बन, तो कहीं से भी काउंटिंग करो 1 2 3 देन 4. तो हाउ मेनी 4 कार्बन. 4 मीन्स ब्यूट, और ब्यूट के साथ सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट यानी सफिक्स इज इन, इट मीन्स ब्यूटेन. क्लियर? इजी बहुत. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज यू हैव CH3 CH2 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 CH3. देखो हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 5. कहीं से काउंट करो 1 2 3 4 5. तो 5 के लिए होता है पेंट एंड सिंगल बॉन्ड इज देयर, इट मीन्स इन. अब देखो सेकंड वाला इसका एग्जांपल, ये वाला देखो. CH3, अब सपोज CH यहाँ पे ऊपर दिया है CH2 CH3 CH2 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 CH3. अब देखो काउंटिंग कहां से करेंगे. जैसे किसी ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो रॉन्ग हो जाएगा. देखो अभी मैंने बताया था कि नॉट टू बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो. देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट यहां से आ रहा है. तो देखो अगर यहां से काउंट करें 1 2 3, तो ये क्या बन गया, ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया. अब यहां से ये 3 पोजीशन में, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहां से बहुत दूर जा रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंड मतलब नजदीक से लेना है. तो यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7.
तो देखो 3 में क्या आ गया, CH3 ग्रुप, तो इसको क्या बोलोगे 3 मिथाइल। देखो हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सभी लेटर स्मॉल होंगे। 3 मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन, 7, 7 मीन्स हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड इज देयर, इट मीन्स इन, हेप्टेन। क्लियर? देखो, so this is the first, second and third example. Now again fourth example. Suppose you have CH3, CH, again CH2, CH3. Now again CH2, CH. Now there is CH2, CH3 and now CH3 also. तो देखो यहां से कैसे काउंट होगा, अब ऐसे काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आ रहा है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी नहीं जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो लॉन्गेस्ट इधर से आ रहा है। तो देखो कहीं से यहां से भी करो तो 1 2 3 में ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इधर से भी 1 2 3 कहीं से भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब 2 CH3 है तो इसको क्या बोलोगे, 2 CH3 के लिए 3 और किसमें है, 5 पोजीशन में है, तो होगा 3,5। दोनों सेम है तो डबल के लिए क्या यूज होता है, डाई। दो सेम है तो डाई मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन, 7, इट मीन्स हेप्टेन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, now the next again, okay, देखो next example is what, now suppose you have CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3 एंड अगेन CH3। तो देखो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट का मतलब क्या होता है, ये समझो सेकेंड रूल। अब देखो यहाँ से भी सेकेंड कार्बन पे CH3, यहाँ से भी सेकेंड पे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 में दूसरा CH3, यहाँ से 1 2 3 में है, तो लोवेस्ट लोकेंट देखो अगर मैं यहाँ से काउंट करता, सपोज 1 2 3 4 5 6, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अब देखो 2 में यहां से देखो काउंट करो, कॉर्नर पे लिख रहा हूं, 2 में एक है, प्लस 3 में एक है और एक 5 में है, टोटल इनका ऐड करो कितना आ रहा है, 5 3 8 10। यहां से काउंट करते 1 2, ठीक है 1 2, तो एक 2 में है, 1 2 3 4, एक 4 में है और एक 5 में है, तो देखो 5 4 9 2 11, यानी लोवेस्ट लोकेंट कौन सा है, तो हम यहां से काउंट करेंगे। आया, क्लियर हुआ? ओके, ये देखो लोवेस्ट लोकेंट नहीं है, दोनों में लोवेस्ट लोकेंट मतलब लोवेस्ट नंबर कौन सा है, देखो यहां से 2 में एक है, 3 में एक है और एक 5 में। अगर यहां से काउंट करते तो 1 2 में ये होता, 3 4 4 में एक होता और एक 5 में, तो लोवेस्ट लोकेंट को काउंट करेंगे। लेकिन ये 99% राइट है, 1% का भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। अब देखो इसका नेम क्या होगा, 2 में है एक, 3 में है एक और एक 5 में, तो 3 सेम ग्रुप है तो इसके लिए क्या होगा, ट्राई। 1 के लिए सिंपल लिखते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ट्राई क्या होगा, मिथाइल, ट्राई मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन, 6, यानी हेक्सेन। क्लियर? क्लियर? अब देखो जैसे सपोज आपके पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब देखो वो लोवेस्ट लोकेंट तो होता है, लेकिन एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। जैसे सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ऊपर नीचे इसके CH3, फिर CH2, फिर CH2,
फिर CH2, फिर CH2, फिर CH के साथ एक CH3 एंड अगेन CH3। तो देखो यहां से अब तीसरे कार्बन पे 2 ग्रुप है, इधर से 1 ग्रुप है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो बताया जहां से नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां से काउंट होगा। तो देखो ये एक अदर एग्जाम्पल है, जहां से नंबर ऑफ ग्रुप सामने दिखे सब्स्टिट्यूएंट। देखो यहां से तीसरे पोजीशन में, यहां से दूसरे पोजीशन में, तो हमेशा नजदीक वाले सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हैं, भले ही यहां पर मोर ब्रांचिंग हो। देखो अब यहां पर लोवेस्ट लोकेंड का रूल नहीं होगा। जैसे यहां से अगर मैं काउंट करता तो 1 2, तो एक तो 2 में है, 3 4 5 6 7, 7 में कितने हैं 2, तो 7 + 7, तो ये हो गया 14 to 16। यहां से काउंट करते 1 2 3 में क्या है 2 है, और 4 5 6 7 8 +8 में, तो देखो 8 6 होता है 14। तो लेकिन हम इसको काउंट करेंगे, सिर्फ यही है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो 2 में 1 है और 7 में 2 है, तो क्या होगा 2 7 7, 3 है तो फिर अगेन ट्राई मिथाइल, और 9 है तो नोनिन। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज यू हैव CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ CH, यहाँ पर C2H5, अगेन CH2 CH3। देखो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से दिख रहा है, 1 2 3 4, नीचे जाते तो 5 6 तब भी होता है, इधर भी जाओगे तो 5 6 तब भी होगा। तो देखो यहाँ पे ग्रुप नजदीक है, इधर से 3rd में, इधर से 2 में, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो C2H5 को बोलते इथाइल और CH3 को बोलते मिथाइल। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगा, पहले होगा E फिर होगा M, यानी पहले इथाइल, तो इथाइल किस कार्बन पे 4 में, तो 4 इथाइल, फिर देन 2 मिथाइल, and how many carbon in main chain 6, यानी हेक्सेन। एक एग्जाम्पल और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, CH3 CH, यहाँ पे आ गया Cl ग्रुप, फिर अगेन CH2 CH, इस CH के साथ यहाँ पे आ गया Br, तो ये भी अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगा। अब कंफ्यूज कि यहां से सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, यहां से सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकली में, तो काउंटिंग यहां से होगी 3 4 5। क्या लिखोगे, 2 के साथ क्या जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 4 के साथ क्लोरो, और 5 है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सफिक्स क्या होगा इन। क्लियर 100%? Okay. Now the next example, CH3 CH, यहाँ पे हो गया F, फिर CH, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पर CH, इसके साथ आ गया CH3, और यहाँ पर CH, इसके साथ आ गया C2H5, फिर CH2 CH3। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है, तो काउंटिंग तो यहीं से होगी, यहाँ से नजदीक में सेकंड कार्बन पे, यहाँ से 3rd कार्बन पे, तो काउंटिंग तो यहीं से होगी 5 6 7। तो देखो 2 में क्या है फ्लोरो, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट करो, तो पहले क्या आता है B, फिर आएगा E इथाइल, तो क्या होगा इसका नाम 3 ब्रोमो, देन आफ्टर 5 इथाइल, फिर 2 फ्लोरो Fl फ्लोरो, फिर 4 मिथाइल, 7 कार्बन के लिए क्या होगा हेप्टेन।
यस, ये तो बड़े इजी वाले थे। अब इसमें देखो कुछ आपके पास आएंगे टफ वाले। वो टफ वाला मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल भेजूंगा। CS3, CS2, CS2, CH, यहाँ पे आ गया CH और इसके दोनों साइड पे CS3। इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। CS3, आगे CS2, CS2, CH3। देखो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 जा रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन हमेशा देखना होता है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 में भी ये ग्रुप है, यहाँ से भी वही है, तो काउंटिंग कहीं से भी करो, 3 4 5 6 7। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो फोर्थ में ये ग्रुप है, इसको एक्चुअली बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अभी पीछे मैंने ऊपर इसका बताया भी है, लेकिन इसको आईयूपैक में कैसे लिखोगे देखो। अब फोर्थ में ये पोजीशन है, तो देखो इस कार्बन को फोर्थ में, इस वाले कार्बन को जो इससे डायरेक्टली अटैच है, इसको एक बार अगर हम काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे 1 डैश कर लो, 1 डैश कार्बन, एंड कहीं से भी इसका लॉन्गेस्ट चेन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब ऐसे थोड़ा करेंगे 1 2 3, तो किसी एक तरफ से ले लो, 1 डैश 2 डैश। अब ध्यान से देखना, ये क्लियर हुआ। जब हम इसको काउंट करने के बाद इस कार्बन पे आएंगे तो यहाँ पे इसको मानेंगे हम 1 डैश, और चाहे इसको 2 डैश मान लो, चाहे इसको 2 डैश मान लो। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले तो हमें फोर्थ पोजीशन में फोर्थ लिखना है ऐसे, फिर उसके बाद डैश लगाना है, फिर ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में देखो 1 डैश में, ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया, 1 डैश में क्या है, मिथाइल है, तो यहां लिखोगे 1 डैश मिथाइल। और 2 कार्बन है तो क्या होगा, 2 कार्बन के लिए इथेन नहीं यूज होगा, यहां पर इथाइल वर्ड आएगा। अब ये मत बोल देना कि सर पहले ई आएगा फिर एम, पहले हम इस 1 डैश से जो जितने भी कार्बन जुड़े हैं उसको पहले काउंट करेंगे, तो 1 डैश मिथाइल, फिर ये दोनों कार्बन को एक साथ ले लेंगे। अगर 3 होते तो प्रोपाइल हो जाता, 2 है तो इथाइल। अब इसका काम खत्म, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्लियर, इसका काम खत्म, इस ग्रुप का काम खत्म। एंड हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन, 7, तो ये हो गया हेप्टेन। ठीक है, मैं इसका अभी एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करता हूं, इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से एक बार समझाता हूं, CS3, CS2, CH, CH, CS2, यहाँ पर CS3 और यहाँ पर CS3। आगे काउंट कर दो, CS2, 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 CS3। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ऊपर वाला ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 4 5, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। यहां से नजदीक में ये सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गया ऑक्टेन। अब देखो 3 वाले में ये ग्रुप आ रहा है, तो हमने क्या बताया था, जिस कार्बन के साथ जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं हम 1 डैश। अब यहां से देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश। ठीक है, अब देखो किस पोजीशन में जुड़ा है, 3 वाले में जुड़ा है, तो ये 3 लिखकर डैश ब्रैकेट। अब 1 डैश में तो लॉन्गेस्ट चेन आ गया, तो 1 डैश में जुड़ा क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो यहां लिखोगे 1 डैश मिथाइल। क्लियर, तो इसका काम खत्म। अब इसके साथ कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है, मेथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। अब इसका टोटल वर्क खत्म। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 8, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्लियर, एक मैं आपको देता हूं, ये होमवर्क में हो गया आपका, CS3, CS2, 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 then CH,
इसके नीचे भी CH CH3, then again CH CH3 and then CH3. अब देखो जैसे यहाँ पे काउंट करने का इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 3 डैश में अब 1 डैश में भी मिथाइल होगा, 2 डैश में भी, तो 1,2 डाई मिथाइल लिखोगे तो CH2 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 and CH3. This is your homework. क्लियर? एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ होमवर्क के लिए। तो यहाँ से काउंट करते हैं, CH2 यहाँ पर हो गया Cl, CH2 CH2 CH Br CH3। क्लियर? और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, CH3 C CH2 CH3, नीचे भी CH2 CH3, ये C2H5 भी लिखा हो सकता है, CH2 CH2 CH single bond CH3 and single bond CH3. This is your homework. Okay, these 3 क्वेश्चन और उधर मैंने 2 क्वेश्चन दिए, तो इसको आप जस्ट सॉल्व करिए और फिर बाद में मुझे ग्रुप में या व्हाट्सएप में मुझे सेंड करो। ओके, थैंक यू।